Hello everyone, today we will solve problem based on the eigenvalue and the eigenvector. So let us have the question. Find the eigenvalue and eigenvector for the matrix is equal to 1, 0, minus 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3. First of all, write given matrix as A is equal to 1, 0, minus 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3. Write first the characteristic formula for 3 by 3 matrix as lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant A is equal to 0. So for this purpose we will find out s1 s2 determinant A. S1 is the sum of diagonal element. Here the diagonals are 1, 2, 3. So adding just diagonals 1 plus 2 plus 3 is equal to 6. Second S2 sum of minor of the diagonal elements. For diagonal, select diagonal first, then we have to eliminate the positions of the diagonal elements to obtain the minus. First diagonal is 1, 1, so dropping first row and first column, we are getting to 1, 2, 3, to 1, 2, 3. Second diagonal position 2, 2, second row, second column, drop that by getting just 1 minus 1, 2, 3. And the third diagonal in the same way, we are getting just third row, third column, just drop. We are having 1, 0, 1, 2 like this elements. So just cross multiply, 3 to the 6 minus 2 and 3 plus 2 becomes and 2 minus 0, 2 and 4 plus 5 plus 2, 9 plus 2, 11. Now determinant A is 1, 0, minus 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3. So first write as it is this, and for determinant A just dropping this column and row, we get 2, 1, 2, 3 minus 0, again first row second column, getting 1, 1, 2, 3, third one, first row first column, 1, 2, 2, 2, like this. So just do the cross multiplication between them, that is 2 to 6 minus 2 and this is 0, this 2 minus 2, that is minus 4. So 6 minus 2, 4, minus minus will be plus sign, so 4 plus 2 is 6. Now move towards just putting the values of S1, S2 and determinant A in equation number 1C. So 1 implies with the values of S1, S2 and determinant A, that is lambda cube, getting lambda cube minus S1, that is 6 times lambda square, plus S2, which is 11 times lambda, minus determinant A is 6, so 6 is equal to 0. So this is I substituting the value. So I getting the equation in terms of lambda as lambda cube minus 6 lambda square plus 11 lambda minus 6 is equal to 0. This is the cubic equation. Now we have to obtain, because it has highest degree 3, so we have to obtain corresponding 3 आइगन वैल्यूज़. ठीक है, तो 3 यहाँ से आइगन वैल्यूज़ हमें मिलने वाली है. तो कौन सी मिली है, किस तरह से पता करना है, हमें पहले इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व भी इजीली निकाल सकते हैं या फिर मैनुअली भी निकाल सकते हैं. जैसे मैनुअली निकालना है तो मुझे एक वैल्यू सपोज करो मैं लेती हूँ, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर अगर 1 रखती हूँ लैम्डा की जगह पर, तो मुझे क्या मिलता है, 1 माइनस 6 मिलेगा मुझे, माइनस 5 प्लस 11, 6 माइनस 6, 0. मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है. मीन्स क्या रहेगा, ये 1 एक सॉल्यूशन तो 1 रहेगा. तो मैं इसको बताती हूँ मैनुअली किस तरह से सॉल्व करना है आपको. तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई होता है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली लैम्डा इज इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे, for lambda is equal to, we have to reduce the power to obtain the values actually. So write 1 this as it is. So 1 into 1, that is 1 here. This is minus 5 into 1, this is minus 5. So 11 minus 5 gives you 6, 6 1 is 6. So we're getting 0. It means, what it means, okay, this is the coefficient of lambda square, this is the coefficient of lambda. We will write the quadratic equation as lambda square minus 5 lambda plus 6. Now the factors of this equation is very simple in order to calculate. So if I just break 6 into 2 numbers at as 3, 2, so the product gives you 6. If I add them, just not giving minus 5, so I just putting minus sign in front of these two factors. That's why I getting 3 to the 6
plus 6 and minus 2 minus 3 or minus 3 minus 2 as 5 numbers. So the factors of this quadratic would be lambda minus 3, lambda minus 2. Roughly I can say these two are the factors, and we supposed actually in the starting lambda equal to 1, the one factor would be lambda minus 1. So I'll write like this. In the three values, the possible values of lambda would be lambda is equal to 1, first we assumed, and minus 2 minus 3 means if you equate lambda minus 2 is equal to 0, so you will get 2 value, and lambda minus 3 is equal to 0 gives lambda is equal to 3. So these are the three values in this way, lambda is equal to 1 to 3. If you want to calculate, you can use the calculators to directly enter the coefficients and just obtain the values of lambda as it has the 3 power. Okay, now these are the eigenvalues. Now we have to calculate for each eigenvalue the corresponding eigenvectors. So first of all, write the eigenvector formula A minus lambda I x is equal to z. This is the form. Now you know very well A minus lambda I construct using the A matrix. So our A matrix was 1 0 minus 1 1 0 minus 1 and 1 2 1 1 2 1 and 2 2 3. This was A. Now what we have to do to obtain A minus lambda I, just select the diagonal, and after the diagonal just put the minus lambda sign like this. Okay. Now multiplied by x means that is x1 x2 x3 is equal to, this is 0 0 and 0. Okay, now just keep the value of lambda as 1 in this equation, say equation number 2. So put lambda is equal to 1 in equation number 2. So here we are getting 1 minus 1, that is 0 value, 0 minus 1 1, 2 minus 1 is 1 number, then 1, 2 2, 3 minus 1 is the 2 number, then x1 x2, then x1 x2 x3 is equal to 0 0 and 0. Okay, now making equations with the help of the coefficients. So first row first column, just do multiplication, matrix multiplication, first row with first column, 0x1 0x2 minus x3 is equal to 0 like this. And for first element use x1, second element x2, and third element with x3. So I have to just 0x1 plus 0x2 minus 1 into x3 is equal to 0. The first equation, same way, x2 1x2 1, again 1, x3 is equal to 0. Then 2x1 2x2 2x3 0, 2x1 2x2 plus 2 times x3 is equal to 0. Okay, so with the help of these three equations we will find out x1 x2 x3. Now using students the Cramer's rule, again in the first topic we see in linear dependence, independence of factors, how we will obtain the unknown values for three variables, right? So for three variables, either the variables are x1 x2 x3, use any two equations and apply the Cramer's rule to obtain x1 x2 x3. But here remember the students here in second and third equations, look at that. Second equation says coefficient 1 1 1, while is third as 2 2 3. If I divide third equation with 2, I getting 1x1 1x2 1x3 means the second one, means last two equations are same. Here you have to look very carefully, the same, last two equations are same, so we have to just take two equation in such a way that their coefficients would be different. या मैं हिंदी में बोले इस तरह से कि आपको दो इक्वेशंस पकड़ना है और वो उनके कोएफिशिएंट्स जो है डिफरेंट होने चाहिए. सेम इक्वेशंस ना ले, सेम इक्वेशंस लेंगे तो प्राइमरी रूल से आंसर आपको 0 0 आएगा जो वैलिड नहीं रहेगा. इसलिए कोई दो आपको डिफरेंट इक्वेशंस कोएफिशिएंट्स वाले इक्वेशंस पकड़ना. जैसे मैंने 1 2 लिया इसमें, जैसे फर्स्ट में दे दूँ, इसको सेकेंड ये दे दूँ, तो यह 0 0 -1 है, यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर ये 1 1 1 है, तो आप यहाँ तो फिर यहाँ बेटर होगा आप ये इस मैट्रिक्स को देख लें. जैसे मैंने 0 0 -1 1 1 1, तो ये ऑफकोर्स ये
डिफरेंट है एकदम। अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 1 1 बन जाता है, तो ऐसा ना ले। तो यहीं पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ से देख कर लें कि पहले 2 इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं और क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको 2 डिफरेंट इक्वेशंस लेना है और उसी में क्रैमर्स रूल लगाना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पहले 2 इक्वेशंस को, ये तो मैंने सेम लिखा हुआ है बच्चों, तो मैं यहाँ पर ये एरो डाल दिया है, तो मैंने ये इसको लेना है और लगाना है क्रैमर्स रूल। सो बाय क्रैमर्स रूल मैं लिखूँगी x1 अपॉन, देखिए ये फ्रेंड हमने पहले ही कर चुका है चीज़, x1 अपॉन, फिर देन माइनस x2 अपॉन मॉड ऑफ, देन x3 अपॉन मॉड ऑफ दिस, राइट। सो x1 आपने ड्रॉप किया तो आपके पास x2 x3 का कोएफिशिएंट्स आएगा, x2 का आ गया 0 एंड माइनस 1, देन 1 1। x2 का कोएफिशिएंट्स आप एंटर करें तो 0 माइनस 1 1 1, x3 का कोएफिशिएंट्स आएगा तो 0 0 1 1, इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करें इसके अंदर x1 अपॉन, ये आपका क्या 0 माइनस ऑफ 1 इंटू -1 तो हम ब्रैकेट में लिखना होगा इस तरह से, देन माइनस x2 अपॉन 0 माइनस 0 0, देन माइनस अगेन -1, केयरफुली हमने ब्रैकेट में लिखना है, तो x3 अपॉन दिस इज 0 माइनस ऑफ 0 लाइक दिस, ठीक है। सो x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x3 अपॉन 0। अब माइनस हम लोग नीचे शिफ्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा x2 अपॉन -1, x1 अपॉन 1, x3 अपॉन 0। इस वे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं x1 अपॉन 1, x2 अपॉन -1 से x3 अपॉन 0। तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 0। सो x1 1, x2 आपके पास -1 और x3 0। अभी जो वैल्यूज़ आई आपके पास, इसे हम लोग इनक्लोज करेंगे। पहला आइगन वेक्टर जिसे हम लोग बोलेंगे x1 इज इक्वल टू, पहले बिफोर इनक्लोजिंग इन द वेक्टर x1 हमें चेक करना होगा ये सही है नहीं। तो क्या करें, हम इसको किसी एक इक्वेशन में या तीनों इक्वेशन में डाल कर देखते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड 0 होता है क्या, एज RHS 0। तो x1 की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, क्योंकि ये 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये भी 0 है। x3 की वैल्यू, हाँ ये 0 है, तो x3 देखिए यहाँ पर x3 यहाँ 0 है, तो ये सारा का सारा 0 बना देगा। इस तरह से 1 2 में भी रखें तो ये 1, फिर 1 प्लस, सॉरी ये -1 है, तो 1 -1 0, और x3 पहले 0 तो ये 0 हो गया फिर से थर्ड में भी रखें तो ये 1 आपके पास देगा ये, अब 2 दिखा दो 2, फिर -2 0, x3 वर्सेस 0 में ऑल इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो दीज आर द करेक्ट वैल्यूज़, ठीक है। अब हमें इसको आपको रखना है, एक आइगन वेक्टर है x1 में, तो हमें इसका नाम दे देना है x1 इज इक्वल, एनक्लोज करेंगे x1 x2 एंड x3 से। अब x1 x2 x3 की जो हमने वैल्यूज़ निकाला हुआ है वो इस तरह से है, जस्ट वी हैड 1 -1 0, ओके 1 -1 एंड 0, ठीक है। तो ये हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे निकाला है। सेम इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट आइगन वैल्यूज़ पे फिर से आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। हम लोग अब चूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट जो आइगन वैल्यू हमारा है वो 2 है। सो हम पुट करते हैं सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्या इक्वेशन नंबर 2 बनता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखने पर फिर से हमारा, तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैं फिर से इक्वेशन को लिख देती हूँ। ओके, दिस इज ए मैट्रिक्स मेरा that was 1 minus lambda, then 0 minus 1, then it was 1 2 minus lambda, and then 1 and 2 2 3 2 2 3 minus lambda, x1 x2 x3 x1 x2 x3 जगह आप x y z भी ले सकते हैं, आपकी जो भी मर्जी है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखने पर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर किस तरह से बनेगा देखते हैं। 1 minus 2 ये हो जाएगा -1 0 -1 1 2 minus 2 0, then 1 as it is, then 2 2 3 minus 2 1, then multiply x1 x2 x3 is equal to 0 0 and 0। okay, so making equations once again, आप फिर से remember कि हमें 3 इक्वेशंस मिलने वाला है, इसमें क्रैमर्स रूल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत इजी है, x1 इसके साथ लगा दो, x2 इसके साथ, x3 इसके साथ लगा दो, ठीक है। सो हमें मिलेगा -x1 देन प्लस 0 x2 -1 x3 0, देन
1x1 plus 0x2 plus 1x3 is equal to 0. The third one is 2x1 plus 2 times of x2 1 times of x3 is equal to 0. वैसे देखो तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास और तीन अननोन्स है. जब भी तीन अननोन्स है तो याद रखिए हमें दो इक्वेशंस ही लेनी है और क्रैमर्स रूल लगाना है. तो और दो इक्वेशंस कैसे होनी चाहिए, उनके जो कोएफिशिएंट्स है जो सिलेक्ट करोगे डिफरेंट होने चाहिए. डिफरेंट से मेरा मतलब कैसे, देखिए पहले दो अगर ले लें तो इस कोएफिशिएंट्स यहाँ -1 1 डिफरेंट हो गया, 0 0 ठीक है ये चलेगा. -1 1 मतलब आपको ये देखना है कि दोनों इक्वेशन सिमिलर नहीं होनी चाहिए. जैसे यहाँ से देखें तो ज़्यादा क्लियरिटी आती है 1 0 -1. इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो यहाँ पर 1x1 है ना, तो -0x0 तो 0 का तो कोई मैटर नहीं है. देखिए मैं करके यहाँ बता देती हूँ एक्चुअली. सो अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x1 आ जाएगा प्लस -0, ऐसा लिखते नहीं हम लोग हमेशा, x2 फिर ये आ जाएगा माइनस की जगह पर प्लस x3 इक्वल टू 0. मतलब मुझे मिलेगा क्या, x1 0 तो -0 is 0, कोई मीनिंग नहीं होता. मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड इक्वेशन आ गया. मतलब ये दोनों सेम है, ऐसा कहने का मतलब ये दोनों सेम है. जब ये दोनों सेम है हमें क्या करना है, ये अभी इसको हटा दें, ये कॉम्बिनेशन हटा दें, ये कॉम्बिनेशन को ना लें, दूसरा कॉम्बिनेशन देख लें. दूसरा कॉम्बिनेशन देखो हम लोग अगर ये दोनों को देखते हैं तो स्पेशली आप यहाँ देखो, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ इस चीज़ को, यहाँ देखें तो 1 ये देख 1 2 डिफरेंट हो गया, 0 2 डिफरेंट हो गया, 1 एक सिमिलर है तो भी चलेगा, सारे के सारे सेम नहीं होने चाहिए कोएफिशिएंट्स, राइट. तो ये यानी सेकेंड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये दो को लेकर के हम लोग क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं. सारे कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, इसको हम लोग डिफरेंट बोलेंगे, डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ टू इक्वेशंस. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्रैमर्स रूल लगा लेंगे. फिर से यहाँ लिखेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल. तो जब आपका x1 अपॉन गेन 2/2 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x3 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ. ओके, या हमने क्या कंसिडर किया, लास्ट इक्वेशन, तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा. इसको पहले x1 को छुपा लेते हैं. जैसे ही मैंने छुपाया तो आपके पास आएगा 0 1 2 1, लिख लेते हैं 0 1 2 1. फिर x2 को इस तरह से छुपा लो तो 1 1, ये 1 1 दे रहा है आपको, 2 1. x3 को आपको हाइड करना है तो 1 0 2 2, इस तरह से देखिए, इस तरह से आएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x1 अपॉन 0 -2 पहला आंसर आएगा. फिर इसके बाद माइनस x2 अपॉन 1 -2, इस तरह से कैलकुलेशन. नाउ द थर्ड वन इज x3 अपॉन दिस इज 2 माइनस ऑफ 0. तो व्हाट आई गेटिंग इज x1 अपॉन -2 इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन -1 इज इक्वल टू x3 अपॉन 2. ठीक है, इस तरह से x1 अपॉन -2, x3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये वैसे मैच रहेगा. तो हमें क्या मिलेगा, x1 अपॉन -2 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x3 अपॉन 2. x1 की वैल्यू आ जाएगी -2, x1 -2, x2 1 आ जाएगा, x3 की वैल्यू 2 आ जाएगी. अब ये तीन वाले से सेकेंड आइगन वेक्टर बन जाएगा. ठीक है, और पहले इसको चेक कर लें फिर से ये सही है नहीं. फिर से इक्वेशंस में रिवाइज करते हैं कि माइनस प्लस की भी गलती हुई तो पकड़ा जाएगी. यहाँ पर हमें को चेक करना होगा कि सही है या अगेन फिर से हमें इक्वेशंस में रखना होगा. तो ये x1 हमें -2 लेना है, x2 1 लेना है और x3 2 लेना है, इस तरीके से. ठीक है, तो हमें रखना होगा इसके अंदर. तो हम देखते हैं वैल्यूज़ क्या मिलती है हमारे पास. ठीक है, देखिए जैसे ये इक्वेशंस में मेरा को तो आपके पास मिलती है वैल्यूज़ ये +2. देखिए पहले इक्वेशंस में x1, देखिए मैं फिंगर रख रही हूँ इस तरह से, और आप थोड़ा सा ध्यान और रिमेंबर रखें वैल्यूज़, तो आपको वेरिफिकेशन ईजी हो जाएगा. -2 तो ये 2 हो जाएगा, तो 0 कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, और ये 2 -2 0. पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई. ये -2 और यहाँ देखिए ये +2 0 फिर से, फिर ये -2 2 4 4 -4 -4 +2 -2 और ये +2 0, और इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है यहाँ पर फिर से. ठीक है, सो दिस इज परफेक्टली आंसर. सो x2 हमारा होगा x2 आइगन वेक्टर, दैट यू नो आइगन वेक्टर x2 इज इक्वल टू विथ वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 एज -2 1 2 -2. Okay, this is -2 1 2. This has happened for lambda is equal to 2. Now in the same way again go for the third eigenvalue which I consider to be 3. Now put lambda is equal to 3 in equation number 2 again. So what I'm getting is again I just writing a
ये थोड़ा सा मुश्किल काम है मुझे उल्टाना, इसलिए मैं क्या करती हूँ, हर बार मैंने इसको ए मैट्रिक्स को लिखना है और उसके डायगोनल्स के बाद माइनस लेम्डा लगाना है, देन उसके बाद मैं वैल्यू पुट करती हूँ इस वजह से। तभी मैं फिर से क्या करूँगी, मेरी सिंप्लिसिटी के लिए आई एम डूइंग लाइक दिस. You will do also like this, so you will not forget, right, how to write a minus lambda e matrix. Okay. तो लैम्डा 3 रखना है तो मैं डायरेक्टली अब वैल्यू करके सिंप्लीफाई कर देती हूँ इसको. 1 माइनस 3 आपके पास बचेगा माइनस 2. देखिए इसको लिख रही हूँ मैं जीरो विद लैम्डा 1 एंड ठीक है. देखिए 2 माइनस 3 माइनस 1 बनेगा, देन 1 एज इट इज़. दिस इज 2 एंड 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस 3 0 बनेगा. ठीक है. Now x1, x2, x3 is equal to this is 0, 0 and 0. ठीक. अब फिर से इक्वेशंस बना लेते हैं हम लोग एंड इक्वेशंस बनाने के बाद उसको वैल्यूज निकालेंगे. तो ये बनेगा आपका माइनस 2x1 प्लस 0 टाइम्स x2 प्लस ऐसे लिखने ज़्यादा अच्छा रहेगा x3 is equal to 0 and 1x1 प्लस माइनस 1 टाइम्स x2 plus 1 times x3 is equal to 0, then 2x1 plus 2 times of x2 plus 0 times of x3 is equal to 0, right? Now again आपको फिर से क्या करना है, do think of this. Yes, आपको लेना है दो इक्वेशन जिसमें जो कोएफिशिएंट्स है वो सारे सेम नहीं, डिफरेंट कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, सारे के सारे सेम नहीं होने चाहिए. ऐसी दो इक्वेशंस लेनी है फिर से. ठीक है. तो ऊपर से देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है. ऑफकोर्स ये दोनों भी अलग है, मतलब पहले दो भी ले सकते हैं, लास्ट दो भी ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं अपनी. ठीक है. मैं ये पहले ही दो ले लेती हूँ और इसमें लगाती हूँ क्रैमर्स रूल. सो अगेन आई अप्लाइंग द सेम, अप्लाइंग और यूजिंग क्रैमर्स रूल. ओके. नो एंटर x1 अपॉन डिटरमिनेंट. ओके. तो देखिए पहले मैंने दो लिया था, मैं इसी पर काम करूँगी. अभी देखिए इसको मैंने छुपा लिया अभी फिर से सिंपल तरीके से. तो मेरे पास बचता है 0 माइनस 1 माइनस 1 1. तो मैं यहाँ लिख दूँगी 0 माइनस 1 माइनस 1 1 दिस माइनस x2 डिवाइडेड बाई दिस. ओके. इसको अभी हाइड कर लेते हैं तो मिलेगा माइनस 2 माइनस 1 1 1 1 1. देखिए मैं इसको इस तरह से लिखा है x3 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ x3 को हाइड कर लेना थी तो माइनस 2 0 1 माइनस 1. ये मेरे आंसर्स बनेंगे. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आप तो x1 अपॉन 0 दिस इज 0 माइनस 1 तो कैलकुलेशन आपको बनने का 1 सिंपल माइनस x2 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ये आएगा आपका माइनस 2 और यह जाएगा माइनस माइनस प्लस. ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि साइन का जो है वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ा स्लो करेंगे कैलकुलेशंस. यहाँ पर 2 माइनस 1 2 माइनस 0 लाइक दिस. राइट. तो व्हाट आई गेटिंग इज हियर x1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 देगा आपको x3 अपॉन 2. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा x1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x3 बाई 2. सो फिर से आपके पास ऑप्टेन आई मतलब वैल्यूज़ है माइनस 1 1 2. ये हमारी 3 वैल्यूज़ अब आ चुकी है. इससे इंक्लूड होगा हमारा थर्ड आइगन वेक्टर. तो लेट अस चेक इट आउट आइदर द वैल्यूज़ आर करेक्ट और नॉट करेक्ट. दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ 3/2 मैट्रिक्स. तो आप याद रखें x1 की वैल्यू माइनस 1 है, से माइनस 1 अगर यहाँ रखती तो प्लस 2 हो जाएगा. 0 का कोई मतलब नहीं तो 2 याद रखें. इसके बाद ये माइनस 2 यानी 0 हो रहा है. फिर से यहाँ पर मैं रखती हूँ माइनस 1 तो माइनस 1 यहाँ पर और ये माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 और ये प्लस 2 0. थोड़ा सा पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा आप याद रखें इन चीज़ों को. माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 0 एंड दिस इज 0. सो अगेन आई गेटिंग द परफेक्ट वैल्यूज ऑफ x1 x2 is 3. Now I am enclosing these values in one column matrix, that is eigenvector x3. Okay. Now x1 is equal to minus 1, x2 is equal to 1 and x3 is equal to 2. So call just as the x3 is the third eigenvector with values minus 1, 1 and 2. Say this. This is for lambda is equal to 3. So in this video lecture we see how to get the eigenvalues and eigenvectors
दैट इज़ फॉर 3x3 मैट्रिक्स। जो मैंने बीच बीच में चीज़ें बताई है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बड़ी बातें इज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट points. So students, thank you so much for watching my videos.